Welcome to the today's lecture on transfer curve. Okay, we'll see in today's class two things: transfer curve of operational amplifier, and second one, the ideal characteristics of the operational amplifier. Okay, so see, this is your operational amplifier. Okay, so there are two terminals, input terminals. Let us suppose input is V1, V2 and output is Vout. Okay, and as we know that the differential voltage gain AD or open loop gain, you can say AOL, is equal to Vout upon Vd. What is Vd? Vd is equal to this V2 minus V1. Voltage at non-inverting terminal minus voltage at inverting terminal. Okay. So in this class we will try to, and let us suppose the supply voltage is, let us suppose, plus VCC, and let us suppose minimum supply is minus VEE. Let us suppose these two are the power supply, plus VCC and minus VEE. Collector supply is plus VCC and emitter supply is minus VEE. Okay. So let us see. First of all, let us take this AOL, open loop voltage gain equal to 10 to the power 6. Okay, that is a finite, but that is very high. Okay, so what will happen? What will be the output? Let us suppose if Vd means the difference between these two voltages is 1 microvolt. Okay, so what will be the output? Vout, if we will see from this relationship, what will happen? Vout equal to AOL upon Vd. AOL up into Vd, है ना? यही हमेशा इक्वेशन रहेगा आपका जब भी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आप आउटपुट निकालना चाहते हैं. AOL कितना है? 10 टू द पावर 6. और ये Vd कितना है? माइक्रोवोल्ट मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 6, है ना? इसको आप रखिए 10 टू द पावर माइनस 6. क्या हो गया ये और ये कट गया. कितना आ गया आंसर आपका? 1 वोल्ट. आउटपुट कितना हो गया? 1 वोल्ट. साथ ही साथ एक जगह ड्रॉ करते भी चलते हैं, है ना? एक जगह ड्रॉ करते चलते हैं, है ना? इधर लेट अस सपोज voltage in microvolt. Okay, so let us suppose this is a small voltage, so answer is 1 volt. Answer for this input, this is your Vd, है ना? इस डायरेक्शन में डिफरेंशियल वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और ये आउटपुट वोल्टेज के लिए है ना, एक्सेस. सो व्हाट विल हैपन? दिस इज योर डिफरेंशियल इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज. सो फॉर 1 माइक्रोवोल्ट, मिलीवोल्ट नहीं, माइक्रोवोल्ट इनपुट Vd, output is 1 volt. Okay, and for second, let us suppose if Vd is equal to 10 microvolt, okay, Vout will be 10 to the power 6 into 10 into 10 to the power minus 6, and that is 10 volt, है ना? So that will be the answer will be 10 volt here for 10 microvolt input. Okay, so यहाँ पर क्या होगा? लेट अस सपोज इसके लिए 10 वोल्ट आ रहा, तो यहाँ
अब देखिए, अगर लेटर सपोज इसको हमने मान लिया 15 वोल्ट और इसको हमने मान लिया -15 वोल्ट, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर AOL = 10⁶, वहां लिख दिया हमने। अब लेटर सपोज हमने एक और लिया VD = 50 माइक्रोवोल्ट, VD = 50 माइक्रोवोल्ट, ये हमने VD ले लिया, है ना। सो V out कितना होना चाहिए, AOL into VD. What is AOL 10⁶ and what is VD? 50 into 10⁻⁻⁶. So it will be 50 volt, है ना। 50 वोल्ट और 50 वोल्ट should be the right answer, है ना। Right answer should be 50 volt somewhere around here. Okay. But our maximum supply voltage is 15 volt, and any device that can give the maximum output that is equal to the supply voltage. कोई भी डिवाइस मैक्सिमम कितना आउटपुट दे सकता है, जितना उसके पास मैक्सिमम सप्लाई होगा। मैक्सिमम सप्लाई इसमें कितना है, 15 वोल्ट, तो ये 15 वोल्ट ही दे सकता है, 50 वोल्ट नहीं देगा। जब भी VCC से ज्यादा आ जाएगा आंसर, तो वो 15 वोल्ट ही देगा, चाहे वो कुछ भी हो, तो ये 15 वोल्ट ही देगा। लेट अस सपोज VD = 100 वोल्ट, VD = ये आपका यहां आ गया, ऐसे आ गया, है। और अगर 100 वोल्ट भी आ जाएगा, 100 माइक्रोवोल्ट, तब भी V out जो है वो 100 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन इतना आएगा नहीं। आएगा कितना, 15 वोल्ट। ये भी नहीं आएगा, कितना आएगा, 15, क्योंकि जितना सप्लाई है उतना ही तो आएगा। मैक्सिमम सप्लाई के बराबर ही आ सकता है ना। तो कभी भी आप इनपुट में कितना भी डिफरेंस लगा दीजिए दोनों में, दोनों इनपुट के बीच, आउटपुट आपको कितना आना है, जो मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज है। कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे लीनियरली बढ़ेगा, एक जगह जाके सेचुरेट हो जाएगा, जिसको Vset भी हम लोग बोलते हैं, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू प्लस Vset। मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू प्लस Vset एंड मिनिमम सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू माइनस Vset, है ना। तो इस तरह से निगेटिव में भी ये आएगा, है ना, और ये ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ओपैम्प का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनिशियली अगर आप इनपुट बढ़ाएंगे तो लिनियरली बढ़ेगा, इस इक्वेशन के हिसाब से बढ़ेगा, है ना। कहां तक बढ़ेगा, जहां तक प्लस VCC तक या माइनस VE तक, यहीं तक बढ़ेगा लिनियरली। यहां तक बढ़ेगा प्लस VCC तक, या यहां तक घटेगा माइनस VE तक। यहां से ज्यादा वोल्टेज है ही नहीं, तो इतना आप कितना भी इनपुट में डिफरेंस लगा लीजिए, आना चाहिए 50 वोल्ट लेकिन आएगा 15 वोल्ट, आना चाहिए 100 वोल्ट लेकिन आएगा 15 वोल्ट, क्योंकि 15 वोल्ट ही सप्लाई है आपके पास, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन दिस क्लास इज आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपैम्प, है ना। ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये देखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपैम्प, तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प। Ideal characteristics of operational amplifier. Ideal characteristics of operational amplifier. Okay. So हम लोग ये भी देख लेंगे, है ना, कि 3 कॉलम लेते हैं हम लोग, कि इधर पैरामीटर देख लेंगे, है ना, ठीक है, पैरामीटर्स
और यहां पर देख लेंगे हम लोग आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहां पर प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए होगा? IC 741 के लिए। 741 कितना देता है ना? एक तो आइडियल वैल्यू होगा कितना देना चाहिए, और जो आपके पास IC 741 है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कितना देता है ना? आइडियल तो होगा नहीं, कोई भी चीज आइडियल होता नहीं है ना? तो प्रैक्टिकल ही होगा, है ना? तो हम लोग ये सारी चीजों के बारे में अभी एक एक करके देख लेंगे। इधर आप सीरियल नंबर भी दे सकते है ना? तो सीरियल नंबर दे दीजिए। पहला में आप ले लीजिए इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा। इनपुट इम्पीडेंस RI, है ना? इनपुट रेजिस्टेंस भी कई बार बोलते हैं, दैट इज इनपुट इम्पीडेंस RI। सो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कितना वैल्यू होना चाहिए? इनपुट इम्पीडेंस, एक ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? यहां RI की बात करें तो इट शुड बी इंफिनिटी। सो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंफिनिटी। बट प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम IC 741 का बात करें तो इसके लिए कितना होता है इनपुट इम्पीडेंस? दैट इज 10 to the power 6 ओम, 1 मेगा ओम होता है इसका। दैट इज RI इक्वल टू 10 to the power 6 ओम फॉर दिस IC जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग लैब में यूज करते हैं, है ना? ओके, इससे भी अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं जिनका जो ये होगा वो 10 to the power 7 ओम होगा, 10 to the power 8 ओम होगा, है ना? और भी अच्छा अगर किसी ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना लिया तो 10 to the power 10 ओम होगा, लेकिन होगा प्रैक्टिकल, है ना? इससे बहुत अच्छा ऑप एम्प होगा, लेकिन आइडियल नहीं होगा, क्योंकि आइडियल इंफिनिटी है। इंफिनिटी किसी को पता है? किसी को नहीं। सो 2 सेकेंड नंबर पे आता है आपका आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस R आउट, ये आइडियली कितना होना चाहिए? 0, और प्रैक्टिकली कितना होता है? 10 to 100 ओम। ये हम लोग जो एम्पलीफायर अभी यूज करते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर, उसका जो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 ओम नहीं होके आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है? 10 to 100 ओम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओपन लूप वोल्टेज गेन, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन, इसको AOL बोलते हैं, है ना? ये ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है, इसी की वजह से हम लोग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा पाते हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे, है ना? तो ओपन लूप वोल्टेज गेन कितना होता है? आइडियली इट शुड बी इंफिनिटी, बट फॉर प्रैक्टिकल केस इट इज 10 to the power 6। AOL का वैल्यू कितना है? 10 to the power 6, रादर -10 to the power 6, और ये माइनस इंफिनिटी, है ना? तो ये है 10 to the power 6 होता है इसका वोल्टेज गेन, जो हम लोग 741 यूज करते हैं, उसका वोल्टेज गेन कितना होता है? दैट इज 10 to the power -6, 10 to the power 6। और जो चौथा है वो है आपका बैंडविड्थ। कितना हो? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितना होता है? आइडियली कितना होना चाहिए? इंफिनिटी, है ना? और प्रैक्टिकली कितना होता है? 10 to the power 6 हर्ट्ज, है ना? 10 to the power 6 हर्ट्ज। ओके, इसके बाद आता है 5वें नंबर पर CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, बट अभी हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे। आइडियली CMR
R should be infinity, but in practical case it should be 10 to the power 6, और dB में देखेंगे तो 120 dB, it should be 120 dB, है ना। और अगर हम लोग स्लीव रेट देखें, है ना, स्लीव रेट, इसको जनरली ASR से दिखाते हैं स्लीव रेट को, है ना। स्लीव रेट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना। और ये आइडियली होना चाहिए इन्फिनिटी। ये होता कितना है जो हम लोग यूज करते हैं उसमें कितना होता है, 80 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, 80 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। एक्चुअल में स्लीव रेट क्या है, जब भी हम इनपुट देते हैं, लेट अस सपोज कुछ भी इनपुट दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आना चाहिए, है ना। लेट अस सपोज हमने 1 मिली वोल्ट इनपुट दिया, आउटपुट आना चाहिए 1 वोल्ट, है ना, या 10 वोल्ट या 20 वोल्ट आउटपुट आना चाहिए। तो 0 से 20 आने में जो समय लगता है, जिस रेट से 0 से 20 जाता है, एक्चुअल में होना तो इनफाइनाइट चाहिए कि जैसे हमने दिया 0 से तुरंत 20 वोल्ट आ जाए बिना कोई समय गंवाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा समय लगता है आउटपुट को चेंज होने में, और जिस रेट से चेंज होता है उसको कहते हैं स्लीव रेट। तो स्लीव रेट आइडियली इन्फिनिटी होना चाहिए, बिना किसी समय के जो फाइनल आउटपुट है वहां पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा ये IC 741 है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 1 माइक्रोसेकेंड में ये 80 वोल्ट चेंज होता है। ये छोटा मोटा नहीं है चेंज, दैट इज वेरी फास्ट, है ना। 1 माइक्रोसेकेंड में 80 वोल्ट चेंज हो जाता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना चेंज हो सकता है। लेकिन फिर भी और भी अगर इंप्रूव करना चाहते हैं आप इसको, तो इसको और ज्यादा होना चाहिए। 100 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, 200 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, 1000 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, है ना, मिलियन वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। तो जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा उतना अच्छा होगा, है। लास्ट वन है, वो है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, है ना, PSRR, है ना। आइडियली ये 0 होता है, और प्रैक्टिकली जो इसका वैल्यू होता है दैट इज 30 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। जनरली ये जो चीज है, ये पूरा पार्ट जो है, जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है ना। तो जो इनपुट इम्पीडेंस है दैट इज इन्फिनिटी, आउटपुट इम्पीडेंस इज 0, ओपन लूप वोल्टेज गेन इज -infinity, bandwidth is infinity, CMRR is infinity, slew rate is infinity, and power supply rejection ratio is 0। तो आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 ही चीज मिलता है, चाहे तो इनफाइनाइट होगा नहीं तो 0 होगा, है ना। आप देख सकते हैं इसमें, तो बाकी सब इन्फिनिटी है सिवाय 2 चीज के, एक पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो और एक आउटपुट इम्पीडेंस के। अगर हम प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जो वैल्यू है, जो इन्फिनिटी वाला वैल्यू है, वो 10 टू द पावर 6 के आसपास आता है ना। और बाकी जो स्लीव रेट है और वो एक अलग है। स्लीव रेट का वैल्यू है 80 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, है ना। और PSRR और आउटपुट इम्पीडेंस जो 0 है उसका बहुत स्मॉल वैल्यू होता है। तो यहां से जो आउटपुट इम्पीडेंस है दैट इज 10 to 100 ओम, और जो ये PSRR है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, उसका 30 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट है ना। तो इस तरह से हम लोग फिर अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।